So, good morning, everybody. I hope everyone is fine and doing well. So, in the last class, uh, we were discussing consumer behavior, where we saw the definition of consumer behavior, and we also discussed some aspects of consumer behavior. That what does it mean, and what are the various elements that marketeers must keep in mind while offering to uh, consumers their products and services. And we also saw the a broad definition of consumer behavior that signified the behavior of consumers that display while searching for evaluating purchasing or finding alternatives or disposing of final goods and services in the marketplace. We also discussed in the definition of consumer behavior that consumer behavior includes a lot of things, that it signifies how a consumer buys a product, how often does he buy that product, why he buys that product, what is the frequency of his purchase of products, how does he use that products, and what he does expect from that product, and what are the post purchase behavior or future implications of that purchase, why whether he is going to purchase that product in the future again or not, will he be telling others that others should purchase this product or not, will he be a will he be a repeated purchaser or not, will he bring some new consumers to our products or not, or whether he will be forcing our existing customers to uh, not buy our products. So all these we discuss in the broad definition of consumer behavior. So what does consumer behavior mean? What does it include in its broader ambit? And after that, we went for discussion on segmentation. That what does segmentation mean? Market segmentation. When we are going to divide our whole market or a heterogeneous market, a large market, into small pieces or into smaller homogeneous markets, that is, each of these markets have some common characteristics or features. It may be on the basis of geographic features, it may be on the basis of demographic features, it may be on the basis of some socio-cultural features, and whatever the basis of segmenting the market can be. So the segmentation plays an important role in the marketplace when a marketeer is going to divide or identify his customers in the marketplace, that what are the characteristics of my customers that I should keep in mind while offering my products to them. So segmentation plays an important role. After that, we touched upon a little bit on effective criteria for uh, targeting a segment. So when we are discussing targeting the segment, it simply means what we should keep in mind while segmenting or our markets. That is, segments should be identifiable, they must be in sizable, they must be reachable, and they must be differentiable, or they must have some characteristics. So these were the broad broad concept that we discussed in the last class. In addition to this, what we discussed in the last minutes of the class was basis of segmentation, that we touched upon in brief. We will discuss those bases in detail today's class, and we will see how does a market can be divided into various smaller parts to effectively serve those markets and earn a profitable income or profits or return or value from the customers. So we will discuss those
basis of segmentation, basically geographic, demographic, psychographic, psychological, socio-cultural, then not political basis is not a basis, not a basis. Then we will see hybrid or some brand usage, brand loyalty. All these basis of segmenting a market will be discussed in today's class, so that we will have a deep understanding of segmenting a market. Why does a marketer choose to segment his markets? So we will discuss these things in the today's class. So I think we should go ahead. So let me share my screen. Yes. I hope my screen should be visible to all of you. And yes, Yes, sir. then PPT. So I hope this too is visible. Is it visible or not? Yes, sir, it's visible. Okay. So consumer behavior. Okay. So consumer behavior. We are discussing the second module of our syllabus, that is basically consumer behavior and segmentation, market segmentation, how these concepts are interrelated with each other, and what does consumer behavior stand for segmenting a market, and in turn segmentation of market, uh, what is it has for consumer behavior. So we have discussed the definition of consumer behavior, then variables affecting the behavior of a consumers, that what factors they are asked that affect the behavior of a consumer. So they range from demographics to geographic, behavioral factors, personal factors of consumer, that is behavioral factors, socio-cultural factors, psychographic, that is the combination of demography and psychology. Sometimes we also call psychographic factors as psychodemographic factors. So this is the just alternative name of psychographic factors, that we discuss market segmentation, criteria for effective targeting of segments. And yes, we were here in the last class. So this is for segmenting the markets. We were discussing, we just see in brief what are the various bases on which a marketer chooses to divide his markets. So these are the various basis on which a marketer divides his markets. So let's go for in detail for one by one. So the first one is geographic segmentation. When we are going to divide our marketplace on the basis of some geographic location. So a region, city size, density of area, climate. So we touched upon it a little bit in the previous class. I will discuss in detail. So when we are going to divide our markets in geographic locations, so it may be region like if I give an example of India, that North India, South India, East India, West India, Northeast India, then your northeast, then southeast. So these may be regions, or it may be a particular city, that you whether you are going to target your customers in some metropolitan cities or smaller towns or in villages. So what are the reasons that is geographical locations on the basis of which you are going to divide your markets, so that you can effectively target those markets and serve your customers accordingly. So your efficiency and effectiveness both play a very important role, and they are strong in this while you are dividing your markets. So geographic, so the first one is region. So which region you are going to choose in the marketplace to divide your market. Suppose in India, I choose to
target my customers in northern India only. That is the some states of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, your Rajasthan, some part of Gujarat, Delhi, Uttarakhand, and these all places attached to northern India. So when I go for dividing my markets on the basis of geographic locations, so I choose a place where I will be offering my goods and services. Moving ahead, city size. So city size basically is, as I told you, whether we are going to offer our goods and services in metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, smaller towns, maybe some area nearby Delhi, or villages, rural India. So, what is the city size that you are looking for to offer your goods and services in that particular city? City size basically is the your whether it is uh, metropolitan cities, whether it is smaller towns, it is town or it is villages. So city size. Next one is density of area, that is population density. Population density simply means what population is there in a square kilometer. So 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या आ रही है, तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी या हिंदी में जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एरिया, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, दैट विल बी बेटर फॉर अस एज अ मार्केटियर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बाय करने वाले कंज्यूमर्स होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ऑफरिंग कर सकेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पे अच्छे से सेल होगा, अच्छे से बिकेगा। तो हमारा एज अ मार्केटर यही पर्पज है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ऑफर कर सके, हमारा टारगेट यही होता है। देन क्लाइमेट, नेचुरल कंडीशंस, जो भी आपका क्लाइमेट है, क्या जो है, अगर हम बात करें थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रेन हो रही है, या वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हीट हो रही है, या फिर कोल्ड का एनवायरनमेंट है। तो क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न इंडिया का एग्जांपल लें, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है कि जो है चेंजिंग है, कि आपको यहाँ पे कोल्ड भी मिलेगा, आपको जो है समर भी मिलेगी, आपको रेन भी मिलेगी, और जो एक हम कहते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो आपको मिलेगा। तो ये हमारे क्या कहते हैं, इसकी कंडीशन है हमारे क्लाइमेट की। क्या हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, कि क्या हमें ऐसा तो नहीं है कि हम अगर हिली एरिया में टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वार्म क्लोथ्स है या वार्म प्रोडक्ट्स है वही ऑफर करने पड़ेंगे। सपोज करो आप जाते हैं हिली एरियाज में, आपका शिमला हो गया, उसके अपर पार्ट्स हो गए, आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो जब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर करने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को आप ले लें जहाँ पे साल के 12 महीने ठंड रहती है, तो आप अपने प्रोडक्ट को किस बेसिस पे जो है ऑफर करने जा रहे हैं। अगर उन मार्केट्स में आप जो है ऑफर करने जा रहे हैं हिली एरियाज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वूलन क्लोथ्स है, वार्म क्लोथ्स है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और अगर आप उसके जो है अपोजिट दूसरे एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ का जो ज्योग्राफिक कंडीशन है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है, नेचुरल क्लाइमेट है, उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट प्रोडक्ट्स कैन यू ऑफर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। सो ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे अगर हम अपनी मार्केट को सिंपली डिवाइड करें, तो हम पर्टिकुलर रीजन को देख रहे हैं, सिटी साइज देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हैं, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, ज्योग्राफिकल हमारे टेरेन कैसा है, वो सारी चीजें देख रहे हैं। अब ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ज्योग्राफिक फैक्टर के बेस पे, तो यहाँ पे बात आती है, अगर हम आज के 21st सेंचुरी की बात करें, तो विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देयर इज नो सच ज्योग्राफिक लोकेशन एट ऑल। तो यहाँ पे आपका जो मार्केट है वो पूरा एक है। विद 1 क्लिक ऑफ योर कंप्यूटर आप किसी भी एरिया में जो है क्या कहते हैं
वर्चुअल तरीके से पहुंच जाते हैं। तो जब ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम कहेंगे ठीक है, यस देयर एग्जिस्ट सम बाउंड्रीज, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो यहाँ पे क्या है कि कोई बाउंड्री नहीं है। तो आपका हो सकता है कि आपने टारगेट कर रखा है, सपोज करो कि हम दिल्ली में ही अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करेंगे, लेकिन आपका कस्टमर कहीं से भी हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, दिल्ली के अदर पार्ट से, बाहर के हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जब ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे अपने मार्केट को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम वहां पे बहुत ज्यादा स्टिक नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है कि यस हम सिर्फ दिल्ली में ही सर्व करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेट है वो बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफिक बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज है, उनको एलिमिनेट कर चुका है वर्चुअल तरीके से। तो आप कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाने हैं वो आप मंगा लेते हैं। तो ये बात होगी ज्योग्राफिक basis of segmenting the markets. Next one is demographic. So demographic जैसा कि हमें पता है study of age, sex, marital status, education, occupation and income of individuals. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके बेसिस पे हम अपने मार्केट को डिवाइड करने जा रहे हैं। अब जब हम एज की बात करते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, या क्या आप जो है जो इन्फेंट्स है उनको आप जो है अपना टारगेट बनाने जा रहे हैं। इन्फेंट्स है तो उनके लिए जो भी प्रोडक्ट्स है, क्या आप उनको आप जो है ऑफर करने जा रहे हैं। चिल्ड्रन है अप टू 14 ईयर तक के हैं, 10 ईयर्स तक के हैं, क्या उनको आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर करने जा रहे हैं। टीन एज है, क्या उनके लिए आप बनाएंगे। उसके बाद बात आती है एडल्ट है, मैच्योर एडल्ट हैं, देन उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हैं, फिर उसके ऊपर भी सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। तो that depends on the age group which you are focusing to divide your market. तो अगर आप जो है क्या कहते हैं जिस एज ग्रुप को फोकस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसी तरह अपने प्रोडक्ट को जो है वहां पे मार्केट में प्रमोट करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड योर मार्केट। अब एज में जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें सपोज करो कि हमें जो चिल्ड्रन के प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस करना है, तो अब आप किसी भी जो है सेगमेंट में चले जाएं, चाहे आप क्लोथ्स में चले जाएं, आप टॉयज में चले जाएं, या आप जो है स्टेशनरी जो आइटम्स है उसमें चले जाएं, तो जो चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मतलब कि एक जो बाकी सेगमेंट होगा, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो इन अदर सेगमेंट, जहाँ पे आप फोकस करेंगे, हर अपनी सेगमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को आपको जो है ऑफर करना पड़ेगा मार्केट प्लेस में। तो ये सारी चीजें आपको एज के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। अब जो अगर जैसे हमने एग्जांपल ले लिया चिल्ड्रन वाला, कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सपोज करो कि जो चिल्ड्रन है उनके लिए ऑफर करने जा रहे हैं, तो आप जो उनके प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो वो पहली बात क्या, चिल्ड्रन क्या है, जो उनके विजुअल्स होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट के विजुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कि अगर आप उसको जो विजुअल्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, जो उसकी पैकेजिंग है, अगर उसको बहुत अपीलिंग बनाते हैं, तो वो जो है चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करेंगे। कि अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, हमारे स्टेशनरी आइटम में तो चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनके आप जो स्टेशनरी आइटम्स को देखें, चाहे वो पेन है, पेंसिल है, या कॉपी है, बुक्स हैं, जो भी हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो पेंसिल वगैरह होती है या जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें वो बने होते हैं, बहुत तरीके की डिजाइनिंग बनी होती है। पेंसिल में भी कुछ जो उसका जो टॉप हेड होता है उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना दिया, कार्टून का कुछ उस पर अटैच कर दिया, इरेजर है तो उसमें कुछ अटैच कर दिया, इसी तरह शॉर्पनर है। इसी तरह अब जैसे आप क्या कहते हैं फूड आइटम्स में अगर आ जाएं, फूड आइटम्स में आप चले आ जाते हैं, जैसे अगर आपका चिप्स का पैकेट है या नमकीन का पैकेट है या कुछ अलग पैकेज आइटम है, फूड है, तो उसमें क्या करते हैं कि अब जैसे कि उसमें कुछ हमने ऐसा अटैच कर दिया कि आप जो है ये जो है उसमें से कुछ जो प्लास्टिक के टॉयज है वो स्मॉल पीस में जो है कलेक्ट करने का जो है दे दिया। जैसे कुरकुरे में स्टार्टिंग में आया था
उसके बाद फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े जो आता था। तो इस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो मैं एज अ मार्केटियर ध्यान में रखूंगा कि जो भी मैं मार्केट को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, देखो सेगमेंट का सिंपल मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना है, कि मैं बस एक मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है वो देख रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मेरे को वहां पे कैसा प्रॉफिट हो सकता है जब मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल करूंगा। तो सिर्फ मैं सेगमेंटिंग का मतलब है कि मैं किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपने मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उनको डिवाइड कर रहा हूँ, सो दैट कि मेरे को आसानी हो उस मार्केट को आइडेंटिफाई करने में, और उस मार्केट के लिए जो भी मेरी ऑफरिंग है उनको वहां तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट इस चीज को बना दें। तो एज के बेसिस पे जब हम जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन से एज ग्रुप में है। अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सेक्स का, वेदर वी आर गोइंग टू ऑफर आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू मेल्स, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स, और वी आर गोइंग टू ऑफर आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू बोथ द जेंडर्स, मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। अब जो भी जेंडर्स है वो आपकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स के लिए चाहे आप क्लोथिंग से लेकर फूड हैबिट तक चले जाएं, अलग मिलेगा इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो मार्केटर अगेन वही बात आती है कि मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यस व्हाट मार्केट आई एम टारगेटिंग एंड व्हाट products I am offering to that particular market. Marital status, whether one is married or unmarried, whether one is divorced or whether one is widowed। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर भाई मैरिड जो है पीपल है तो उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, अनमैरिड है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अब मैरिड पर्सन है तो मे बी he or she may have a family, she or may not have a family, they may have children, they may also not have children। हो सकता है अगर मैरिड जो है तो क्या पता अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जो जॉइंट फैमिली है। तो मैरिटल स्टेटस विल आल्सो play an important role or will help you as a marketer when you are going to divide your markets accordingly। Education level, what is the education level, then education whether your customers are literate or they are not, they are illiterate। और एजुकेशन में भी हम कई सारे ग्रुप्स होते हैं, क्या सीनियर सेकेंडरी तक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या उससे भी अबव के हैं। तो एजुकेशन लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ेगा या घटेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑफरिंग भी डिफर करेगी। अब सपोज करो कि एक मैं ऐसे इंडिविजुअल को अपनी मार्केट को जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा एडुकेटेड है। तो एडुकेटेड होगा तो क्या होगा कि उसको जो ब्रांड की चीजें हैं, उसकी जो चॉइसेस हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, उसके ऊपर उसको बहुत पता होगा कि यस व्हाट आई लाइक और आई डिसलाइक, तो उसको पता होगा। और फिर उसके बाद एजुकेटेड पर्सन है तो आप उसको कोई स्पूरियस प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं। ही और शी में कंप्लेंट अगेंस्ट योर कंपनी। तो एजुकेशन लेवल भी आपको डिफर करेगा। आप एजुकेटेड पीपल हैं तो हो सकता है कि अगर आपकी जो ऑफरिंग है कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं या नॉलेज की चीजें हैं वो भी आप ऑफर कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स चाहिए, न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? दोज हु आर लिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे हैं वही पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर में भी कैटेगरी है कि कुछ हिंदी के पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश के पढ़ते हैं, और जो है कई अलग स्टेट्स में चले जाए वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ते हैं। उड़िया है, बंगाली है, मलयालम है, मैथिली है, पंजाबी है, जो भी आपकी क्या कहते हैं होम स्टेट की लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन भी आपको प्ले करा। आप एजुकेशन के अंदर ही आप क्या कहते हैं कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड आइटम परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि यस आई एम अवेयर ऑफ दिस ब्रांड, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स, इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या ये मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन लेवल भी आपको एक गाइडेंस देगा, एक हेल्प करेगा व्हेन यू आर गोइंग टू टारगेट योर सेगमेंट योर मार्केट। और एजुकेशन का सबसे बड़ा जो आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को
प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे मार्केट प्लेस में, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपके जो मैसेजेस है वो आपके कस्टमर्स को क्लियर होंगे। तो आपको जो है, अगर इलिटरेट पर्सन है तो वहां पे आपको विजुअल्स का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, या वो उस लैंग्वेज में लेके आना पड़ेगा जहाँ पे वो समझते हैं। अब एजुकेटेड पर्सन है तो आप अगर उसको जो है, जो मैसेज है, अगर आप विजुअल्स का यूज भी नहीं करते हैं प्रमोशन में, तब भी वो समझ जाएगा कि यस, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मींट फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। तो एजुकेशन आपका प्ले करेगा। उसी तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, या टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। देन इनकम लेवल, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसका जो परचेज भी है, जो है उसकी कैपेसिटी है वो होगा, बाइंग पावर उसके पास होगी, तो आपके प्रोडक्ट्स को वो परचेज कर पाएगा। अब इनकम के साथ भी एक जो डिलेमा ये है कि सपोज करो कि हो सकता है कि मेरे पास बहुत इनकम हो बट मैं आपका प्रोडक्ट उतना परचेज ना करता हूँ, मैं बहुत सेविंग करने वाला आदमी हूँ, मैं सेव करके चलता हूँ। तो इनकम जो है, ये देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया है, या जो हमारे एशिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता क्या है कि जो कंज्यूमर होता है वो बहुत स्पेंडिंग करता है, तो वो जो कमाता है वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो आप देखो कि जो भी, मतलब कि आप कितना, अगर आप कभी कंपेयर करो कंट्री वाइज, तो जो यहाँ पे एक तो चाइना और एक इंडिया, यहाँ का जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो एमएनसीज हैं, इन्हीं मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो स्पेंडिंग करने वाला होना चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने वाला होना चाहिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज में है, जो है एडवांस्ड इकोनॉमी जिनको हम कहते हैं, वहां पे हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो लेकिन जो कस्टमर है वो उतना पैसा ना खर्च करता हो। तो इनकम लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, सेक्स एंड एज, all these demographic variables will determine that how you are going to segment your markets. Next, moving ahead, psychological segmentation, one of the most important basis for segmenting a market. तो साइकोलॉजिकल जो हमारा फैक्टर है, एक तो आपके जो आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं एज अ मार्केटर, और आपका जो कस्टमर है उसके पर्सनल फैक्टर्स क्या कहते हैं, उसका जो पर्सनल लाइफ स्टाइल है, चाहे वो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, चाहे उसकी परसेप्शन है सेल्फ को लेके, या दूसरे के बारे में वो क्या सोचता है, तो वो सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो भी जितने वेरिएबल्स हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन के अंदर आएंगे। तो बेसिकली द सेगमेंटेशन दैट इज रिलेटेड विद साइकोलॉजी। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है नीड्स। अब नीड्स में जब, अगर आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जो मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें आप बेसिक नीड से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, आप क्या कहते हैं, सेल्फ स्टीम तक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। तो उसी से हमारा ये जो है पहला जो हमारा फैक्टर है नीड्स, ये रिलेटेड है। तो शेल्टर, तो अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप जब क्या कहते हैं किसी इंडिविजुअल के शेल्टर की रिक्वायरमेंट, तो हो सकता है आप जो है क्या कहते हैं रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग में बिजनेस करते हो, या आपका होटल हो कि सपोज करिए कोई 1 नाइट 2 नाइट या कोई आपका टूरिस्ट एरिया है, वहां पे स्टे करने आ रहा है। तो नीड्स विल गाइड यू और हेल्प यू टू डिवाइड अ मार्केट इनटू स्मॉलर पार्ट, दैट इज सेगमेंटिंग योर मार्केट। शेल्टर उसी के अकॉर्डिंग सेफ्टी है, सेफ्टी में भी कई सारी चीजें आती है कि सेफ्टी में भी आप जो पर्सनल सेफ्टी है, बॉडी की सेफ्टी है, या आप क्या कहते हैं किसी अगर सोसाइटी में जा रहे हैं वहां पे सेफ्टी की बात है। जो एक हम कहते हैं कि जो लोनलीनेस की फीलिंग है,
एक तो पर्सनल बॉडी जो है उसकी तो सेफ्टी चाहिए ही। उसके बाद फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, तो मेरे को जो फ्रेंड्स है, अफेक्शन की जो बात होती है कि फ्रेंड्स का मेरा सर्कल हो, मेरे से कोई बात करने वाला हो, तो वो सारी चीजें आएंगी। तो वो भी एक सिक्योरिटी की जो हम कहते हैं कि एक सिक्योर आदमी महसूस करता है, तो वो आपकी नीड्स जो है उसको डिटरमिन करेंगे। सिक्योरिटी, अफेक्शन, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी नीड्स में, जो मैस्लो के नीड्स हायरार्की थ्योरी है उसी से अडेप्टेड है। तो इसमें आपका कस्टमर क्या सोचता है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को लेके क्या सोचता है, कि उसकी अपने खुद की जो सेल्फ इमेज, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ परसेप्शन क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं कई बार कि कई बार लोग सोचते हैं कि यस जो मैं हूँ, मैं कई बार इंट्रोवर्ट टाइप का एक्सट्रोवर्ट हूँ, या मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, या मैं लोगों से बहुत कम मिलता हूँ। तो एक जो इंडिविजुअल की सेल्फ इमेज है, तो वो जो है आपको गाइड करेगी इन एडिशन टू ऑल अदर वेरिएबल्स, कि आप अपने मार्केट को कैसे जो है डिवाइड करें। अब मैं आपको सेल्फ परसेप्शन का या सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का एक एग्जांपल देता हूँ। अब हम कई बार जब एडुकेटेड सोसाइटी में जाते हैं, तो कई लोग जो उनका लाइफ स्टाइल होता है बहुत एडवांस लेवल का होता है, कि अब सेल्फ इमेज में क्या है कि कई लोग पसंद करते हैं कि नीट एंड क्लीन रहना है, जो हमें मतलब कि एक कई बार ये जो है सेंस होती है, एक सेल्फ परसेप्शन होता है कि वी वांट टू लुक यंग, तो इस तरह जो थिंकिंग होती है। और या फिर कई बार होता है कि जो उनका लाइफ स्टाइल एक चला आ रहा है, उसमें कोई जो है अपना इंट्रूजन ना हो। तो सेल्फ परसेप्शन एक इंडिविजुअल का है, वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, उसके बेसिस पे हर मार्केट को डिवाइड कर रहा है। तो सेल्फ परसेप्शन, अफेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, शेल्टर, तो पहला हमारा जो एस्पेक्ट है नीड्स का, कि साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन को एक इंडिविजुअल के क्या चाहिए। उसके बाद है पर्सनालिटी ट्रेट, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, नोवेल्टी सीकर्स हैं, अग्रेसिव्स हैं, लो डॉगमैटिक्स हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट तो सबको ही पता है। उसके बाद नोवेल्टी सीकर्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में कुछ नया ढूंढते हैं, कि जिनको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कि अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं फैशन का, तो फैशन का कई बार हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं कि उनको जो है हर मंथ में या जो है क्वार्टर में जो है क्या कहते हैं, वो अपने जो क्लोथिंग का वियरिंग स्टाइल को चेंज कर देते हैं। तो सपोज करके एक महीने पहले वो किसी और ड्रेस में आ रहे थे, एक महीने बाद आप देखते हैं तो उन्होंने दूसरा लेटेस्ट फैशन जो चल रहा है वो अब जो है अडॉप्ट कर लिया। तो जो नोवेल्टी सीकर है वो आपके मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसी वाले एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कि सपोज करो कि फ्रेंड सर्कल है, कोई फ्रेंड जो है नया जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसके जो है क्लोथ्स को बाय करके लाता है। अब जो फ्रेंड सर्कल में बाकी लोग हैं उसको देखते हैं, तो वो डिस्कशन होता है कि भाई आप कहाँ से लेकर आए, तो वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है। तो जो नोवेल्टी सीकर्स है वो आपके मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, कि इन द सेंस कि वो बाकी को बता रहे हैं, तो वो हो सकता है कि जाके आपका प्रोडक्ट जो है परचेज करें। तो नोवेल्टी सीकर्स दोज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू इन योर प्रोडक्ट, तो वो आपके लिए मार्केट में डेवलप करने का एक काम करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में कुछ नया उनको चाहिए। एक्सपेरिमेंट वो बहुत जल्दी करते हैं कि कुछ भी नया मार्केट में आया है, चलो वी शुड यूज दिस। वो किसी भी जो है सेगमेंट में हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लोथ्स का, वो किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। स्मार्टफोन में हो सकता है, कुछ खाने पीने की चीजें में हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस में हो सकता है, या और भी जो आप एरिया थिंक आप कर सकते हो उसमें हो सकता है कि कुछ उनको नया चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई आई है, उसका जो है क्या कहते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले। 10 अग्रेसिव्स वो है जो बहुत ज्यादा बाय करते हैं, प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बाय करते हैं। तो वो है बस इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोर सिमिलर टू नोवेल्टी सीकर्स। तो नोवेल्टी सीकर्स में क्या है कि ये लोग जो है अपने आपके प्रोडक्ट में कुछ नया ढूंढ रहे हैं, और अग्रेसिव्स क्या है ये बल्क में बाय कर रहे हैं। बस इनको बाय करना है जस्ट आफ्टर नोवेल्टी सीकर्स। तो जो नेक्स्ट हम कैटेगरी इसको बनाते हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसका टाइप क्या है। आगे के जो चैप्टर्स में हम देखेंगे तो उसका टाइप क्या है।
कि क्या वो हमारे जो प्रोडक्ट के साथ है उसको हम जैसे ऑफर करते हैं उसको बाय करने के लिए रेडी है या नहीं है, वो नोवेल्टी सीकर है, अग्रेसिव है, डॉगमेटिक है, लो डॉगमेटिक है। ये जो सारे हमारे टर्म्स होते हैं एक एक करके मैं अभी लो डॉगमेटिक्स का आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। तो अग्रेसिव हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ज्यादा बल्क में परचेज करें, या ये हम कहेंगे कुछ ना कुछ परचेज करने के उनमें जो इंटेंशन है वो बनी है कि वी शुड बाय समथिंग, तो अग्रेसिव हैं। उसके बाद है लो डॉगमेटिक्स। डॉगमेटिक्स हम मार्केट में तब यूज करते हैं जब हमारा कस्टमर जो है प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा परचेज करता है, तो वो सिमिलर टू अग्रेसिव, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करता है बहुत ज्यादा। तो ये जो डॉगमेटिक्स का हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई डॉगमेटिक्स है, लो डॉगमेटिक्स है, तो इसको डिवाइड करके हमने कैटेगराइज कर रखा है कि अग्रेसिव्स की बात हो गई, नोवेल्टी सीकर्स की आ गई, लो डॉगमेटिक्स की बात आ गई कि जो हम हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत सोच समझ के, बहुत उसके साथ जो बाकी लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उनकी एडवाइस पे जाके फिर वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना। तो जो लो डॉगमेटिक्स है तो उनको जो है प्रॉम्प्ट करने के लिए कि आपके वो प्रोडक्ट्स को बाय करें, आपको एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, वो आपको देखना पड़ेगा। ये बात हो गई हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। देन परसेप्शन, कि हम जो एक परसेप्शन तो मतलब कि हम किसी चीज को लेके क्या समझते हैं उसके। आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको लेके आपकी परसेप्शन क्या है, कि क्या मैं जो है अच्छा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा खराब पढ़ा रहा हूँ, या बहुत खराब पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आप परसेप्शन किसी के बारे में या अपने बारे में हो सकती है जब आप बिल्ड करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में किसी चीज को लेके आप क्या परसीव करते हैं, आप क्या उससे जो है मीनिंग निकालते हैं, क्या आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है उस चीज को लेके, तो परसेप्शन है। तो उसमें लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क यही जो, अगर हम इस वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें, ये जो हमारा नोवेल्टी है, अग्रेसिव है और लो डॉगमेटिक्स है, अगर हम इसको यहां से देखें लो डॉगमेटिक्स, अग्रेसिव, नोवेल्टी सीकर्स, तो ये ऐसे चलेगा लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। तो जो कस्टमर है इन द मार्केट प्लेस, व्हाट इज हिज एबिलिटी टू टेक रिस्क। रिस्क का मतलब है कि जब मैं किसी नया प्रोडक्ट आया है, क्या मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूं या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है सिंपल कि वेदर आई एम विलिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट। व्हाट इफ दैट प्रोडक्ट फेल्स टू सेटिस्फाई माय नीड्स एंड डिजायर, और व्हाट if that product is spurious, or what if that product has some deficiency, or what if that product does not provide benefit that I am looking for। तो ये जो रिस्क परसेप्शन है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर के एंगल से जो कस्टमर सोचेगा और मार्केटियर के एंगल से मार्केटियर आप सोचेंगे कि अगर इसको हम मार्केटियर के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो ऑफकोर्स हम सारी चीजें मार्केटियर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। तो इसमें कस्टमर हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जो हमारा मार्केट पूरा का पूरा बेस है वो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग पे है कि आप एज अ मार्केटियर अपने कस्टमर को कितना समझते हैं। तो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क मार्केटर का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम कोई नई मार्केट सपोज करो बनाने जा रहे हैं, नया मार्केट बनाने का मतलब है कि वी आर आइडेंटिफाइंग अ सेगमेंट एंड वी आर गोइंग टू ऑफर आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अब हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कि क्या हम इस अगर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर करें तो ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके क्या होंगे। जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आप नया मार्केट सेटअप करेंगे, नया आप सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको अपना गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपके ऑफरिंग्स हैं, जब आप उसको ऑफर करेंगे तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट फिजिकल गुड्स में है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में है, आपके प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग में है, या
और जो बाकी आपके मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे क्या रिस्क है कि आप अगर उस नए मार्केट को टारगेट करने जा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो है आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करने जा रहे हैं, तो वहां पे क्या रिस्क है। ऐसा तो नहीं कि आपका जो पैसा आपने लगाया वो पूरी तरीके से जो है आपको बैकफायर कर जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो एज अ मार्केटियर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज थिंग दैट में अफेक्ट योर बिजनेस। तो आप लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, तो आपका जो मार्केट है वो पर्टिकुलर मार्केट, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब सपोज करो कि हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में जैसे कोई भी नई मार्केट होती तो हमारी सेल्स नहीं होती, सेल्स नहीं होती तो हम स्टार्टिंग में हमें लॉस में ही ज्यादातर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम सेल्स हमारी बढ़ने लगती तो हम धीरे धीरे उसको रिकवर करने लगते हैं, हमारी जो कॉस्ट है कवर करने लगते हैं। तो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, अगर इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझे कि जैसे है, अब क्या है कि आप लो रिस्क हम मान लेते हैं कि एक आपने प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट जो है इनिशियल स्टेजेस में अटेंशन नहीं गेन कर पा रहा है, या आपको लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट जो है कुछ टाइम तक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारी जो कॉस्ट है वो भी निकल आएगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और उसके बाद ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ये आपके लिए तो लो रिस्क हो गया। मॉडरेट रिस्क में क्या है कि अगर आपकी कॉस्ट भी ना निकले या कॉस्ट का कवर हो जाए, कोई प्रॉफिट ना हो, तो आपका प्रोडक्ट बीच में ही रुक जाए, आपके कस्टमर से उनको डिनाई कर दें। हाई रिस्क में क्या हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया और वो एक्सेप्टेंस ना पा पाए, आप जो कस्टमर्स आपको लगता था कि ये आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, वो उस प्रोडक्ट को परचेज ही ना करें। तो एज अ मार्केटियर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। रिस्क और भी हो सकता है कि सपोज करो कि आपने किसी जो है मार्केट को टारगेट कर रखा है, वहां पे अपने अपने प्रोडक्ट को जो है ऑफर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेके कोई नया रूल आ जाए। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अभी 1-2 साल पहले जब ये हुआ था मैगी वाला केस, आई गेस सबको याद होगा कि क्या हुआ था। तो वहां पे जो उसमें जो वो लोग उसमें यस सर। मिलाते थे, उसकी जो जिंक और बाकी जो उसके एलिमेंट्स थे, उसकी उनकी जो क्वांटिटी थी बहुत ज्यादा थी, तो लोग उसको पूरी तरीके से मार्केट से डिस्कार्ड कर दिए। तो उसके बाद फिर हमारा जो इंडिया में फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, तो ये जो थी उसने इस लॉ को लेकर, लॉ जो थे फूड आइटम्स को रेगुलेट करने के लिए, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो वो आपको एज अ मार्केटियर देखना पड़ेगा। और एग्जांपल आपको देता हूं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल मेरे को लेट मी थिंक, फूड आइटम से रिलेटेड है, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं 6 से 7 महीने पहले चले जाएं, तो जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स आप परचेज करके ले आते थे, तो जब आप उसको जो है यूज करते थे, उसको पीते थे, तो जो उसकी कड़वाहट थी, कड़वाहट का मतलब कि जो उसका स्वाद था, टेस्ट था, वो मतलब कि आपको बहुत ऐसा था कि नाक पे चढ़ जाता था कई बार, और वो पीने में मजा आता था। वो उसमें इसलिए होता था कि जो उसमें एडिटिव डाले जाते थे वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। और अगर आप आज परचेज करके लाते हैं और जो नॉर्मल आजकल आ रही है उनमें आप परचेज कर देंगे, तो उनकी जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको पहले से। आपको कई बार ये लगता है कि सिंपल क्या किया है कि बस चीनी को घोल के पानी में दे दिया गया है, तो जो उसका जो कड़वाहट थी, जो उसमें जो उसका टेस्ट आता था, जो नाक पे चढ़ जाती थी, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एडिटिव पहले डाले जाते थे वो जो हार्मफुल थे हेल्थ के लिए, वो कम कर दिए गए हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में नया रूल आता है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपने तो सोल्ट तैयार कर लिया कि यस मेरे को इतनी क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक्स को जो है मैन्युफैक्चर करना है और ये मेरा फॉर्मूला है। अब नया रूल आया तो आपका वो पूरा फॉर्मूला बेकार हो गया। ऐसे मैगी के साथ हुआ, तो उनके जो स्टॉक्स थे, टन्स में भी जो स्टॉक थे उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। और आज मार्केट में अगर आप परचेज करने जाए मैगी, तो क्या पता मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। Then moving ahead,
एटीट्यूड्स, तो एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है किसी पर्टिकुलर को लेके, कि क्या वो, जैसे कि एटीट्यूड भी हमारा इसी से रिलेटेड हो सकता है जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, कि एटीट्यूड क्या है, कि जो मैं लोगों से सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूँ या लोगों से मेरा जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। तो एटीट्यूड भी हमारे जो है डिटरमिन करेंगे कि आप अपने मार्केट को कैसे जो है सेगमेंट करेंगे। एटीट्यूड से ही हमारा मिलता जुलता है लर्निंग इन्वॉल्वमेंट। लर्निंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे दो तरीके एक प्रोडक्ट होते हैं जो है जब हम बाई करने जाते हैं, जो हम आगे भी चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, क्या वो प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है, या कोई ऐसा नॉर्मल प्रोडक्ट है हम परचेज करने जा रहे हैं। अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, उसमें उतनी ज्यादा हमें जो है थिंक करना पड़ेगा, हमें उसका हर एंगल से उसको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। और जितना हमारा लो इन्वॉल्वमेंट का प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमें ज्यादा सोचना नहीं है, उसको हम जल्दी से उसको फटाफट से बाय कर लेंगे। अब जैसे हमारे डेली यूज आइटम्स के हम ज्यादा सोचते नहीं, हमें पता कि हमें नमक का पैकेट लाना है, हमें इस शॉप से लाना है, या हमारे ब्रेड्स हैं या बटर है, जो चीजें आपके डेली आइटम्स को आप उसको उसमें ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसा चीज लेकर आना है कि दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस। सपोज करके आपको लैपटॉप लेकर आना है, आपको बाइक लेकर आनी है, कार लेकर आना है, या आपको होम परचेज जो है परचेज करना है। तो इस तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। कंपैरिजन करेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, या आपके जो लगता है कि यस दे कैन प्रोवाइड अस अ गुड गाइड, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। तो लर्निंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लर्निंग मीन्स हाई लर्निंग और लो लर्निंग। तो जो हमारे जो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, उसी तरीके से हमारा कस्टमर भी है कि मैं एज अ मार्केटियर जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहा हूं, तो उसमें मैं देखूंगा कि यहाँ के जो कस्टमर है वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। तो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जो हमारा नीड्स, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड लर्निंग इन्वॉल्वमेंट को कवर करता है। मूविंग हेड, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक में जो है वाई है वो लिखने में टाइपिंग एरर हो गई है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। तो जो हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये आपका एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, एंड साइकोलॉजिकल आपका जो नीड्स है, पर्सनैलिटी है, परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड लर्निंग इन्वॉल्वमेंट, ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के। तो उन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके जो हमारा नया सेगमेंट बनेगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी कंसीडर करेंगे और साइकोलॉजी वाले भी कंसीडर करेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक का अगर कोई एग्जांपल हम साइकोलॉजी और डेमोग्राफिक का कोई एग्जांपल ले लें, तो अगर हम जैसे ये इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एज का एंड पर्सनैलिटी का। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एज है और उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है। कि अब जैसे एज में हम टीन एज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीन एज जो ज्यादा होते हैं, अगर उनको जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर नोवेल्टी सीकर्स होते हैं। अब एग्जांपल जो जिस एज में हम लोग हैं उसी एज का एग्जांपल ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने जो है पर्सनैलिटी को भी एक जो है उसमें कंसिडर करते हुए एग्जांपल को कैरी करते हैं आगे। तो हमें पता है कि हम लोग ज्यादा किससे ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी से। अगर कोई मार्केट में कुछ नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट मतलब कि वो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं, हम अपने पे बात करते हैं कि जो हमारी यूज की है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, वॉचेस हो गई, कुछ लैपटॉप्स हो गए, इस तरीके की जो हमारी टेक्नोलॉजी है
उसमें, या सोशल मीडिया पे कुछ नया फीचर्स आ रहा है, तो हम उसको बहुत ज्यादा, हमारी जो कैटेगरी है वो नोवेल्टी सीकर्स की है, कि हम उस प्रोडक्ट को कोशिश करते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी बाय कर सके उतना बाय कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल और, स्मार्टफोन में ही कोई मार्केट में नया फोन आया तो आप सोचते हैं कि उसको हम बाय करें, या फ्रेंड सर्कल में स्मार्टफोन है, पूछते हैं कौन से ब्रांड्स का है, इसके क्या फीचर्स है, कितनी रैम है, कितने आरओएम है, क्या डिस्प्ले है, क्या बैटरी जो उसका पावर है, उसके कितने एमएच की बैटरी है, डिस्प्ले साइज क्या है, ये सारे जो फीचर्स हैं वो आप जो है उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो एज एंड पर्सनैलिटी टाइप, कि हम नोवेल्टी सीकर्स हैं और हमारी टीम जिसकी एज है, तो उसको हम प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे। मूविंग अहेड, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन का हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसके बाद इसमें साइकोग्राफिक में एक चीज आती है VLS जो है सेगमेंटेशन। VALS क्या है? हमारा वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। इसका जो फुल फॉर्म है यही है कि वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। अब वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि वही जो, अगर हम वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल को लेकर आए तो हमारा कुछ नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन का है, कि आप की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है, कि भाई आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है आपका, और आप जो सोसाइटी में जो आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो सिंपल है कि हमारा कॉम्बिनेशन है सिर्फ डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन का। मूविंग अहेड, सोशो कल्चरल सेगमेंटेशन, तो कल्चर्स हैं, रिलीजन है, सब कल्चर्स हैं, सोशल स्टेटस है, फैमिली लाइफ साइकिल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कल्चर सिंपल है कि विच कल्चर डू वी बिलोंग। तो अब जैसे आपको एग्जांपल दो कि अगर आप वेस्टर्न जो यूरोप है वहाँ का अलग कल्चर है, आप जो हमारे इधर आप चले आए एशिया में चले आए, यहाँ पे अलग कल्चर है। तो कल्चर आपका कैसा है कि जो आप अपने मार्केट में जो है प्रोडक्ट को ऑफर करने जा रहे हैं, तो आपको जो है कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जो हम देखते हैं कि जो इंडियन फीमेल्स हैं, मैरिज के बाद ज्यादातर वो लोग साड़ी पहनना पसंद करती हैं। तो अब जब आप फीमेल को टारगेट करने जा रहे हैं, वियरेबल क्लोथ्स में आप टारगेट करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीन एज में है तो वो क्या वियर करते हैं, मैरिड लाइफ के बाद उनका क्या है। तो ज्यादातर जो है साड़ी में ही साड़ी को ही पहनना पसंद करते हैं। तो अब साड़ी में भी आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप में से कोई गांव से हो या गांव में रहता है या कभी गांव में विजिट किया होगा, तो जो फीमेल्स होती हैं तो अपने फेस को कवर करके रखती हैं, अपने फेस को वो कवर करके रखती हैं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम है कि जो फीमेल्स है वहाँ पे उनके जो मेल्स होते हैं जो उनकी एज में बड़े होते हैं, उनसे अपना चेहरा को कवर करके रखती हैं। तो ये कल्चर है। शहरों में चले आए तो आपको हार्डली ये देखने को मिलेगा। तो शहरों में तो आप कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे वेदर समवन इज मैरिड और नॉट। तो आपका जो कल्चर सिस्टम है वो आपको देखना पड़ेगा कि, और उसी कल्चर के अकॉर्डिंग आपका जो पहनावा है, आपका खान पान है, आपका रहन सहन है, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब कल्चर के अंदर में एक छोटा सा एग्जांपल दो, जो हम लोग विक्ट्री साइन बनाते हैं, विक्ट्री जो वी साइन बनाते हैं, अगर हम कोई जैसे हम कुछ चीज जीत जाते हैं या हम किसी में सक्सेसफुल होते हैं, विक्ट्री साइन बनाते हैं। हमारे इधर इंडिया में जो है क्या कहते हैं, और एशिया में उसको जो है ठीक है विक्ट्री साइन माना जाता है, बहुत सारे देशों में उसको विक्ट्री साइन माना जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहां पे विक्ट्री साइन को वल्गर लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि जो आपका जो वहां पे साइन होते हैं कि जरूरी नहीं कि एक देश का साइन दूसरे देश में वही चीज सिग्निफाई करे। तो कुछ जो है कंट्रीज में उसको वल्गर साइन माना जाता है। तो एज अ मार्केटियर you have to be very careful about cultures and accordingly sub cultures and also religion। अब जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे रिलीजन लोगों का डिफरेंट होगा उसी तरीके से उनका जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो अलग होगा। अब रिलीजन के अंदर ही बात कर लेते हैं हम
कि भाई क्या कहता होता है कि जो हिंदूज के अंदर साड़ी पहनने का जो ट्रेंड है, और मुस्लिम्स के अंदर जो है जो बुर्का है, फेस पूरा बॉडी कवर है। तो जो रिलीजन है, कल्चर्स हैं, सब कल्चर हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सपोज करो कि आप एक मार्केटियर है, कोई कोई ये कोशिश करे कि भाई मेरे को साड़ी जो है अपने प्रोडक्ट को ऑफर करनी है और मैं मुस्लिम कंट्रीज में ऑफर करूंगा, दैट इज यूजलेस, नॉनसेंस। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे ऑफर करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली सोशल स्टेटस, ये वैल्यू सिस्टम जो हमारा था, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल, उसी से अटैच फैमिली लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे बात फैमिली लाइफ साइकिल पे, तो आपके जो मेंबर्स हैं, क्या वो बैचलर्स हैं, मैरिड हैं, या जो है क्या कहते हैं विडोड हैं, डाइवोर्स हैं। तो जो हमने अभी डेमोग्राफिक के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसी से हमारा रिलेटेड है फैमिली लाइफ साइकिल। बैचलर्स हैं, अलग रिक्वायरमेंट होगी, कोई मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंधे के ऊपर कि हमें जी खर्चे के लिए पैसा देना है, या चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें एजुकेशन का खर्च है, उनकी पॉकेट मनी है, वो सारी चीजें देनी है। बैचलर लाइफ है, कोई टेंशन नहीं, कोई जो है हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्यों स्पेंड कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो एज अ मार्केटियर उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को भी जो है ऑफर करते हैं। मैरिड लाइफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चिल्ड्रन नहीं भी है तब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस आई हैव टू फीड 2 पीपल। दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखना है। बेसिक नीड से लेके अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसका पूरा ध्यान में रखना है। मूविंग अहेड, यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन। तो इसमें हमारा यूज रिलेटेड का मतलब है कि मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को कैसे यूज करता है। पहला है इसमें यूसेज रेट। यूसेज रेट है कि हाउ फ्रीक्वेंटली डज ही बाय माय प्रोडक्ट। तो जो फ्रीक्वेंसी है परचेज करने की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, दैट इज यूसेज रेट। अवेयरनेस स्टेटस, वेदर माय कस्टमर इज अवेयर अबाउट माय प्रोडक्ट और नॉट, और वेदर ही इज अवेयर ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स और नॉट। तो अवेयरनेस स्टेटस क्या है उसका, कि जो हम इसमें कई बार नोवेल्टी सीकर्स जो हमारे हैं, एग्रेसिव्स हैं, डॉगमेटिक्स हैं, हाई डॉगमेटिक्स हैं, लो डॉगमेटिक्स हैं और लैगार्ड्स हैं। तो इस तरह की जो टर्म्स है वो हम यूज करते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो अवेयरनेस स्टेटस को सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊं, जो अभी मैंने टर्म्स बताए, तो उसमें क्या होता है कि जो जो हमारे जैसे कि हमारे नोवेल्टी सीकर्स हैं, अग्रेसिव्स हैं, हाई डॉगमेटिक्स हैं, लो डॉगमेटिक्स हैं, लैगर्ड्स हैं, तो ये जो सारे हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे कंज्यूमर के जो है उसके स्टेटस को सिग्निफाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि वो मेरे प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहा है, कि क्या वो मेरे प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ नया लेकर आ रहा हूं तो उसको वो परचेज करने जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये हमारा अवेयरनेस स्टेटस ऑफ कस्टमर। ब्रांड लॉयल्टी, वही घुमा फिरा की बात है कि वेदर माय कस्टमर इज गोइंग टू बाय माय प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, क्या वो मेरे ब्रांड के प्रति लॉयल है या नहीं है। स्मार्टफोन का एग्जांपल है कुछ। अब जैसे आप देखें तो इंडिया के मार्केट में 2-3 कंपनीज ने ही जो कैप्चर कर रखा है, Xiaomi हो गया, जो है Oppo हो गया, या Realme हो गया, और थोड़ा बहुत अब जो है पिक्चर में सैमसंग भी आने लगा है। और इंडियन ब्रांड्स जो हुआ करते थे अभी 3-4 साल पहले जिनकी हम बात किया करते थे, माइक्रोमैक्स, कार्बन या बाकी जो ब्रांड थे, वो तो एकदम आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं। तो वेदर माय कस्टमर इज ब्रांड लॉयल टुवर्ड्स माय ब्रांड और नॉट, ये ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर की। अगर ब्रांड लॉयल होगा तो कुछ भी मैं जो भी मैं मार्केट में नया लेकर आऊँ वो परचेज करेगा। मूविंग अहेड, यूसेज सिचुएशन सेगमेंटेशन, आई गेस दिस विल बी लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस डिस्कशन। यूसेज सिचुएशन सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरा जो कस्टमर है, मेरे अभी तो हमने यहाँ पे यूसेज रेट की बात करी कि वो हाउ फ्रीक्वेंटली डज ही बाय माय प्रोडक्ट और यूज माय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात होगी यूसेज सिचुएशन, कि मेरे कस्टमर के सामने सिचुएशन कैसी है, कि जब वो मेरा प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है या यूज करने जा रहा है तो उसके सामने सिचुएशन कैसी है। इसमें पहला है टाइम। अब टाइम में क्या वो लेजर टाइम में जा रहा है, वर्क, रश, मॉर्निंग, नाइट। अब ये जो हम चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
अब जब मैं मार्केट को डिवाइड करने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि लेजर टाइम में कस्टमर क्या बाई करता है, यानी कि छुट्टी का दिन है तो वहां पे क्या वो बाई करने जा रहे हैं। अगर वर्क के लिए उसको क्या चाहिए, रेस्ट, जो इवनिंग का टाइम होता है, कई बार ज्यादातर जो हम बाई करने जाते हैं नून में जाते हैं, आफ्टरनून में जाते हैं 11-12 बजे के आसपास, और शाम को 5 से 6 बजे। तो रश टाइम में वो क्या बाई करता है और मैं क्या क्या ऑफर कर सकता हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, नाइट का टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरा कस्टमर जो है कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसके सामने यूसेज सिचुएशन क्या है कि लेजर टाइम में वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वर्क टाइम में क्या यूज कर रहा है, रश में उसको क्या चाहिए, मॉर्निंग में क्या चाहिए और टी में क्या चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये नाइट का और वर्क का। अब एग्जांपल ध्यान से समझना, सेम एग्जांपल होगा, कंटेक्स्ट अलग होगा। सपोज करो कॉफी है, कॉफी छोड़ो, टी का एग्जांपल लेते हैं। टी के एग्जांपल लेते हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अब मेरे को अपनी जो है टी को उसको ऑफर करना है। तो अब उसको मैं कैसे ऑफर करूंगा, जो है क्या कहते हैं टी को, उसके लिए मैं कहूंगा अ कप ऑफ टी कीप्स यू एनर्जाइजिंग एट वर्क। आपको एक चाय का जो कप है, जो एक आप मेरी जो टी है उसको आप वो जो है आपको वर्क में एनर्जाइज करती है, आपको फ्रेश रखती है। ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल को ऑफरिंग हो गई मेरी। अब कोई ऐसा आदमी है जो नाइट में काम करता है, उसके लिए मेरी अलग टैगलाइन होगी। तो उसके लिए क्या टैगलाइन होगी कि माई टी विल कीप यू अवेक इन द नाइट। क्यों अवेक में क्यों जो है यूज कर रहा हूं, क्योंकि नींद आती है। रात में अगर आप काम करें तो हमें नींद आती है, तो वहां पे हमें जागना है, काम करना है। तो वहां पे टैगलाइन अलग हो गई कि माई कप ऑफ टी या कप ऑफ टी विल कीप यू अवेक ड्यूरिंग नाइट, ये होगी उसके लिए ऑफरिंग हुई। मॉर्निंग वाले के लिए क्या होगी कि हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद अ कप ऑफ टी। तो ये जो टैग लाइन बना था, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्रांड सेम है, ऑफरिंग भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बस क्या है उसका जो मैसेज है, जो उसका प्रमोशन का स्टाइल है, वो मैंने चेंज कर दिया। तो मैं जितने भी मेरे कस्टमर हैं मैं उनके अकॉर्डिंगली उसी तरीके से टारगेट कर पा रहा हूं। तो ये मार्केटिंग में होते हैं। अगर अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, आर यू पीपल देयर और नॉट? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज की क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है? यस सर, नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? यही सर, यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। देखो मेरा पर्पज ये होता है, मैं एग्जांपल इसलिए आपको ज्यादा दे रहा हूँ कि देखो जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो तो आप बुक में से देख के उसको पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे, लेकिन जब एग्जांपल की बात आएगी तो वो आपको और ज्यादा क्लियरिटी लाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये डिटेल में क्या कहना चाहता है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी, ये टाइम वाला नहीं, या इसको जनरल एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर आपने रिसेंट में अभी कोका कोला का एड देखा होगा, किसी ने देखा है कोका कोला का एड? वैसे तो टीवी में देखा होगा, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। कोका कोला का एड जो अभी 2 से 3 मिनट का वो एडवर्टीजमेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि एक जो है फादर है और एक डॉटर है, और ओकेजन है क्रिसमस का। अब उसके जो फादर हैं वो फार फ्लंग एरिया में काम करते हैं, और वो जो उसका क्रिसमस जो है उसकी उनकी जो डॉटर है वो अपने फादर से क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे उनको एक लेटर लिखती है और कहती है कि क्रिसमस एट नॉर्दर्न पोल। तो जो हमारा नॉर्दर्न पोल है, 2 पोल हैं, साउथ पोल एंड नॉर्दर्न पोल, तो क्रिसमस एट नॉर्दर्न पोल। तो अब वो लेटर उतना ही पढ़ता है उसका फादर, और उसके जो आगे का कंटेंट होता है वो नहीं पढ़ता, बस वो जो ओपनिंग लेटर होता है उसमें वो उतना ही पढ़ता है, उसको क्लोज कर लेता है। अब उसका फादर क्या करता है कि डिफिकल्ट टेरेन को जो है, जो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, उसको कैसे भी करके उसको पार करके वो नॉर्दर्न पोल पे पहुंच जाता है।
अब वो नॉर्दर्न पोल पे तो पहुंच तो गया, अब उसको एक वहां पे हाउस भी मिलता है, मतलब कि एक हाउस वहां पे होता है, वहां पे उसको जो सांता क्लॉज है वो मिलते हैं। बट वो देखता है कि उसकी डॉटर वहां पर नहीं है, उसकी डॉटर वहां पर नहीं है। तो अब बेचारा बहुत मायूस होता है। तो अब वो मायूस हो गया, तो अब वो क्या करता है, वहां से रिटर्न होता है। फिर वो वहां से जब रिटर्न होता है अपने घर, जब वो वापस आता है तो एक ट्रक में वो जो कोका कोला की होती है उसमें वो आ रहा होता है। जब वो घर के नजदीक होता है, जब उतरता है, तो जो उसका ट्रक का ड्राइवर होता है उसको लेटर देता है, वही लेटर जो उसकी डॉटर ने लिखा था। किसको? जो पर्सन गया था नॉर्दर्न पोल पे, और ड्राइवर अलग है। तो जब वो लेटर को ओपन करता है तो उसमें जो है लिखा होता है कि क्रिसमस एट नॉर्दर्न पोल एंड गेट बैक टू होम दिस क्रिसमस। तो अब वो जो सेकंड लाइन पढ़ता है, गेट बैक टू होम दिस क्रिसमस, जैसे वो लाइन पढ़ता है तो फिर वो अपने घर जाता है, अपनी डॉटर को देखता है। तो यहाँ पे जो मैसेज कोका कोला ने जो अपने ऑफरिंग के थ्रू प्रमोट किया कि जो कोका कोला है वो सॉफ्ट ड्रिंक की, हम कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर सकते हैं, कि हम इस क्रिसमस पे सिंपल सा उनका मैसेज था कि कोका कोला घर ले आइए, हैप्पीनेस घर ले आइए। क्यों? क्योंकि एक फादर है, उसका फादर फार फ्लंग एरिया में जो है काम कर रहा है, फार फ्लंग एरिया में काम कर रहा है, और वो जो क्या कहते हैं, उसका जो डॉटर है कहते हैं कि क्रिसमस दिस क्रिसमस एट नॉर्दर्न प्लेस नॉर्दर्न पोल, देन इन द एंड वो लिखती है कि गेट बैक टू होम दिस क्रिसमस। तो ये जो एक एडवर्टाइज, आप अपने कस्टमर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जो है ब्रांड के प्रति। एक एग्जांपल और देता हूं, आपको मजा आएगा। मैं वीडियो भी शेयर करूंगा इन दोनों एग्जांपल्स को, मैं जो है जो हमारे सीआर है उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, देन ही विल और शी विल शेयर टू ऑल ऑफ यू। कैडबरी सेलिब्रेशंस का अभी सबने एग्जांपल देखा होगा, वो जो 30 से 35 सेकंड का एक जो एडवर्टीजमेंट है, एग्जांपल मेरे से गलत निकल गया, एडवर्टीजमेंट है, उसमें देखा होगा। तो जो कैडबरी सेलिब्रेशंस ने उस एडवर्टीजमेंट को ऐसे डिजाइन कर रखा है, वहां पे एक डॉटर का उसके मदर से लव दिखाया गया है, एक सर्वेंट का उसके एम्प्लॉयर से लव दिखाया गया है, एक वाइफ का उसके हस्बैंड से लव दिखाया गया है, और एक जो रिटेलर है, एक जो स्टोर कीपर है, उसका वहां पे दिखाया गया है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट बनाया गया है, ये ओरिजिनल वीडियो जो है, मतलब कि जब कैडबरी सेलिब्रेशंस इसको बना रही थी तो इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और ये एडवर्टीजमेंट जो है लॉकडाउन के जब लगा था तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। लॉकडाउन में हुआ क्या, अब जो बिग प्लेयर्स थे मार्केट में, उन्होंने तो अपना जो है ऑनलाइन थ्रू ऑफर करे थे, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर्स थे, तो छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे जिनकी फेमस दुकानें होती थी, अब जैसे एक उसमें कचौड़ी वाले को दिखाया गया, एक जो है ज्वेलरी वाले को दिखाया गया है, और एक स्वीट वाला है उसको दिखाया गया है। तो ये जो इनको अब बिग प्लेयर्स था कि वो अपना, उनके पास रिसोर्सेस था, उन्होंने अपने अपने कस्टमर को टारगेट कर दिया। लेकिन जो स्मॉल प्लेयर्स थे और जो फेमस प्लेयर्स थे, स्मॉल थे लेकिन इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अपने कस्टमर तक वो कनेक्ट हो सके, उसमें उन लोगों को एज अ सब्जेक्ट लेके उस एड को डिजाइन किया गया है। तो उन्होंने बाकायदा उस पर बहुत अच्छी रिसर्च करी, टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, लेकिन जो एडवर्टाइज वो बना के ले आए हैं, तो उसमें आपको डॉटर का लाभ मिलेगा, डॉटर मदर का लाभ मिलेगा, हस्बैंड वाइफ का लाभ मिलेगा, सर्वेंट एम्प्लॉयर का लाभ मिलेगा, एक शॉपकीपर मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मिलेगी। तो जो मैसेज है वो मैसेज क्लियर है कि जैसे आप कैडबरी का जो सिंपल है कि भाई इस दिवाली खुशियां लाए, कुछ लाए, या जो भी उनका होता है। और कई बार जो होता है कि खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, या कुछ करने से पहले मीठा हो जाए। तो ये जो मैसेजेस डिजाइन किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ये पूरा का पूरा टारगेट यही होता है मार्केटिंग का। देखो, अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो मार्केटिंग का क्रक्स यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को जितना बेटर तरीके से, जितना ब्यूटीफुल मैनर में, जितना अट्रैक्टिव मैनर में, जितना अपीलिंग मैनर में अपने ऑफरिंग को आप अपने कस्टमर तक प्रमोट कर पाए, आप
उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल मार्केटियर होंगे। कि आप जितना बेस्ट मैसेज दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उतने ज्यादा सक्सेसफुल आप मार्केटियर होंगे। तो इस तरीके के जो एड है वो आपको इमोशनली अटैच करते हैं कि वहां पे जो कैडबरी के अंदर दिखाया गया या कोका कोला के अंदर जो दिखाया गया डॉटर एंड फादर का लव दिखाया गया, वो एक इमोशनल अटैचमेंट है। यस, और इमोशनल अटैचमेंट में होता क्या है कि वी थिंक यस दिस इज समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो आप इमोशनली अटैच होते हो उस प्रोडक्ट से लेके, उस ब्रांड से लेके, और देन दैट इमोशनल अटैचमेंट फोर्सेस यू टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था टी वाला, कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्क पे है, उसके लिए मेरी मैसेज क्या होगा, मेरा मैसेज क्या होगा। कोई नाइट में काम कर रहा है उसके लिए मैसेज क्या होगा, कोई मॉर्निंग में काम कर रहा है उसके लिए मैसेज क्या होगा। तो इसी तरीके से जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में उस एड को बनाया गया है, वो सिग्निफाई करता है कि उसके लिए टाइम क्या है, मेरा जो कस्टमर है वो कौन से टाइम में उसको यूटिलाइज करने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव पर्सनल गिफ्ट स्नैक फन अचीवमेंट, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूसेज में, कि क्या अपने लिए खुद के लिए ले जा रहा है, किसी को गिफ्ट देना है, स्नैक्स हैं, किसी फन एक्टिविटी के लिए ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम केक का एग्जांपल लेते हैं, किसी का बर्थडे आता है, केक खाया तो अलग जाता है, खाया तो नाम मात्र का जाया जाता है, और उसके बाद पूरे जो है बॉडी को लगाया उसी में जाता है। तो आप किस पर्पज के लिए प्रोडक्ट को लेकर आए, अचीवमेंट, कोई आपने अचीवमेंट करी तो उसको सेलिब्रेट करना है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, स्वीट्स परचेज करेंगे या किसी एक जो है पार्टी देंगे। तो इस तरीके के जो हमारा कस्टमर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन लोकेशन, यही वर्क होम है, वर्क है, फ्रेंड्स होम है या इन स्टोर है, कहाँ पे यूज कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, वर्क पे यूज कर रहा है, दोस्त के घर गया है, या इन स्टोर में यूज कर रहा है। पर्सन, अब यहाँ पे पर्सन है, सेल्फ मतलब कि पर्सन का मतलब कि जो इंडिविजुअल मेरा प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन हिमसेल्फ इज कंज्यूमिंग माय प्रोडक्ट और नॉट, वेदर ही बाइज माय प्रोडक्ट फॉर फैमिली मेंबर, फॉर फ्रेंड्स, फॉर बॉस, फॉर पीयर्स। तो जो भी जैसे जैसे पर्सन की कैटेगरी चेंज होगी, मतलब कि वो किस पर्पज के लिए मेरा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसकी यूसेज सिचुएशन क्या है, तो वो मेरी उसी तरीके से ऑफरिंग भी चेंज होगी। बेनिफिट शॉर्ट, तो मेरा जो कस्टमर है मेरे प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट दिख रहा है, उसके लिए कन्वीनियंट हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि उसको सोशली एक्सेप्ट ना किया जाए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अब जैसे ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, जो एल्कोहल है, इसको जो है सोसाइटी में एक बैड बिहेवियर माना जाता है कि अगर कोई जो है एल्कोहल का जो है यूज करता है, दारू अगर कोई पीता है, शराब कोई पीता है, तो एक बैड बिहेवियर माना जाता है। तो सोशल एक्सेप्टेंस किसी चीज की है या नहीं है, और इस चीज को लेके अभी कई स्टेट्स में जैसे बिहार है, वहां पे तो बाकायदा लॉ है कि शराबबंदी जो कानून है, वो सारी चीजें हैं। तो सोशल एक्सेप्टेंस की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है या नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है, इकोनॉमी का मतलब है क्या वो कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं, देन लास्ट वैल्यू फॉर मनी, वेदर द प्राइस दैट आई एम पेइंग फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऑफर सम वैल्यू टू मी और नॉट। हाइब्रिड सेगमेंटेशन, when we combine all of the factors of segmentation together or one or two factors together, किसी हम अगर इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कोई नया सेगमेंट बना दे, या फिर हम क्या कहते हैं सिर्फ जो है किसी एक दो फैक्टर्स को बना के मिला के बना दे। जैसे हमने देखा था साइकोग्राफिक के अंदर क्या था हमारा, कि डेमोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। उसी तरीके से हाइब्रिड सेगमेंटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम कई सारे फैक्टर्स के, जितने भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए यहाँ पे, ज्योग्राफिक से लेके अपना जो है क्या कहते हैं बेनिफिट शॉर्ट तक, इसमें सारे फैक्टर्स को इकट्ठे करके या इनका किसी एक दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेके, तो दैट विल बी हाइब्रिड सेगमेंटेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर patiently listening me and bearing me. I
and have a good day, and if you have any question, please ask. Thank you, sir. Okay. Sir, thank you. Thank you, sir. Pleasure is all Thank you, mine. sir. अटेंडेंस सचिन है, सचिन स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सचिन आज एब्सेंट है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं।